for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you want to do. We sing together. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Give you praise, God, in every season. Your grace has been enough, and I'm believing the best is yet to come. The cross before me, my hope on things above, and in you, Jesus, oh, the best is yet to come. We believe it. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Oh, your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. We give you praise, God. Let's sing. I know. Declare it. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. We say, I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. I
family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, he is for you. Amen, 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 amen. We sing, may his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. Amen, 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 amen. There is another in the fire, standing next to me. There is another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding what power set me free, there is a grave that holds nobody, and now that power lives in me. There is another in the fire, standing next to me. There is another in the water, holding back the sea. And should I ever need reminded what power set me free, there is a grave that holds nobody, and now that power lives in me. There is another in the fire. Oh, 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 and I can see the light in the darkness as the darkness bows to him. I can hear the roar in the heavens as the space between west and I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. And nothing stands between us. Nothing stands between us. Come on, let's declare this together today. 'Cause there is no other name but the name that is Jesus.
all the things unseen and this reckoning. I know I will never be alone. Yes, I know. Yes, I know I will never be alone. There'll be another in the fire standing next to me. There'll be another in the waters holding back the sea. And should I ever need reminding how good you've been to me, I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. And I can see the light in the darkness as the darkness bows to him. I can hear the roar in the heavens as the space between we're seen. I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. And nothing stands between us, and nothing stands between. There'll be another in the fire standing next to me. There'll be another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding how good you've been to me, I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. Come on, we lift the name of Jesus today. Thank you, Lord. Give you praise. हे देयर चर्च, गुड मॉर्निंग। और आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। ये ना क्यों ना हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, आज की इस सुबह के लिए, इस रविवार के लिए, एक नए इतवार के लिए आपने हम सबको इस ऑनलाइन के माध्यम से इकट्ठा लाया है प्रभु। काफ़ी लोग हमें इस समय यूट्यूब पर देख रहे हैं, गूगल मीट पर देख रहे हैं या बाद में देखेंगे पिता परमेश्वर। हम इन सारे लोगों को आपके हाथों में रहते हैं प्रभु। आने वाली सभा में आप हमारी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा हम आपको आमंत्रित करते हैं, आपकी उपस्थिति, आपका अभिषेक हमें भरपूरी से भरने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आगे का समय आपके हाथों में देते हैं। यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को करते, इसलिए सुनिए और कबूल करिए। और सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमीन, आमीन। और हमारे साथ जो है एक बहुत ही परमेश्वर के अभिषेक जन या परमेश्वर के अभिषेक दास हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। यस, ब्रदर सतीश्वर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ये केरला से हैं, पुणे में रहते हैं। वो उनका एक सुंदर सा परिवार है, उनकी पत्नी है, उनका एक छोटा सा बेटा है। और परमेश्वर उन्हें बहुत बहुतायत में उनके राज्य में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन। तो वो आज हमारे बीच में आकर परमेश्वर का वचन हमारे साथ बांटने वाले हैं और हमारी अगुवाई वो परमेश्वर की उपस्थिति में करने वाले हैं। आमीन। सो मैं चाहता हूँ हमारे घरों में ही क्यों ना हो, ज़ोरदार ताली बजाकर इस परमेश्वर के जन का स्वागत करेंगे। आगे का समय पास्टर सतीश्वर आपके हाथों में लेता हूं। Praise the Lord, church. Greetings to you all in the wonderful name of Jesus. Praise the Lord, कलीसिया। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शुभकामनाएं। I'm so privileged and I thank God for this wonderful opportunity to serve you all. मैं परमेश्वर का धन्यवाद मानता हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला है आप सभी के बीच परमेश्वर की सेवा करने का। And I thank God for Resurrected Life Church in Pune that is impacting the whole city for the kingdom of God. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ रिजरेक्टेड लाइफ कलीसिया के लिए कि वो पूरे पुणे में परमेश्वर के नाम का प्रभाव जागृत कर रहे हैं। I know that God is rooting you all and establishing you all in wherever you are to bring the glory of God descending down to the earth. मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आप सभी को बढ़ा रहे हैं, आप सभी को खड़ा कर रहे हैं ताकि परमेश्वर के तेज को आप पूरे भारत देश में और अपने आजू बाजू की हर जगह लेकर जा सके। And it's been a long time. Me and Pastor Shavik, we are in a relationship and it's been a long time. We know each other as brothers and God is doing mighty things through his life and through you all. मैं पास्टर शर्विक को बहुत सालों से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि उनके जीवन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत चीज़ों को कर रहे हैं। So before getting to the word of God, Holy Spirit is inspiring me
to pray for you all. परमेश्वर के वचन के ओर जाने से पहले पवित्र आत्मा मुझे इस बात की प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूं, Because if we see in the word of God, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें, before Jesus went into the, after Jesus went into the boat of Peter, यीशु मसीह जब पतरस के साथ उस नाव में गए उसके पहले, and before Jesus want to touch Peter and to call him into the purpose that he has called, उन्हें छूने से पहले, उन्हें उनके ऊपर की बुलाहट देने से पहले, Jesus saw the emptiness of Peter. यीशु मसीह ने देखा पतरस के अंदर का खालीपन। Jesus saw that Peter was the whole day, whole night he was tiring to catch the fish and he got nothing. यीशु मसीह ये देख रहे थे कि सारी रात वो कोशिश कर रहा था मछली पकड़ने की, पर कुछ भी वो पकड़ ना पाया। Jesus saw the heart of Peter. उसका जो हृदय है वो हृदय यीशु मसीह ने देखा। He saw the heart of hopelessness. उनका जो हृदय है, निराशा का जो हृदय था, वो हृदय परमेश्वर ने देखा। He saw the heart with full of grief and pain, not knowing what will happen further. दुख और दर्द से भरा हुआ जो हृदय था वो यीशु मसीह ने देखा। यीशु मसीह जानते थे कि उन्हें पता नहीं है कि वो आगे क्या करेंगे। So Jesus decided, I will show my goodness to my son and I will bring him into the purpose. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पुत्र को अपनी अच्छाई दिखाऊंगा, अपनी भलाई दिखाऊंगा और अपनी बुलाहट में उसे लेकर चलूंगा। So today I'm going to pray for you all. इसीलिए आज मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Whatever your needs are, आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, whatever you are waiting for, आप जिन भी चीज़ों के लिए रुके हुए हैं, whatever you think that it is not happening for a long time, जो कुछ भी आपने सोचा है कि बहुत दिनों से ये हो नहीं रहा, today God wants to make it happen. आज परमेश्वर चाहते हैं कि वो पूर्ण हो, Because He is the same God. क्योंकि वो वही परमेश्वर है। How He was before, He is same today. वो जैसा कल था वही आज भी है, And He'll be same for you tomorrow. और आपके लिए कल भी वही होगा। So today we're going to pray and ask God for that move of God to happen in your life that He has already finished for you all in Christ Jesus. आज हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, ये कहेंगे कि जो उसने हमारे लिए पहले ही किया है वो आज प्रत्येक क्षण में हमारे जीवन में उतरे। If you are sick today, आज अगर आप बीमार हैं, Holy Spirit is telling you, पवित्र आत्मा आपसे ये कह रहे हैं, by my stripes you are healed forever. जो फटके यीशु मसीह को लगे उसके द्वारा आपको चंगाई मिली है। If you are burdened financially, अगर आर्थिक रूप से आपके ऊपर बोझ है, if you are going through a poverty, आप अगर उस क्षेत्र से अपने जीवन में जा रहे हैं जहाँ आपके ऊपर आर्थिक चीज़ों का बोझ है, today the Holy Spirit is telling you, आज पवित्र आत्मा आपसे ये कह रहे हैं, I will fulfill all your needs as per the riches of my glory in Christ Jesus. मैं तेरी ज़रूरतों को पूरा करूँगा यीशु मसीह में जो गौरव है उस गौरव से। So we're going to pray now. आज हम प्रार्थना करेंगे। Dear Heavenly Father, we are praying for this wonderful people. पिता परमेश्वर, हम इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। Father, we thank you for their life. इनके जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Father, thank you that you have taken them out of the darkness and you have kept them in your marvelous light. प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अंधकार से इन्हें निकाला है और आपने प्रकाश में आपने इन्हें रखा है। Father, I pray in the name of Jesus. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। I speak healing over their sick bodies right now. इनके बीमारी वाले शरीर पर मैं चंगाई को घोषित करता हूँ। Father, even though you are not in person each other, still in faith, I'm laying my hands on the people who are sick right now. प्रभु परमेश्वर, अगर हम आमने सामने ना हो फिर भी मैं आत्मा में इनके ऊपर हाथ को रखता हूँ अपने। In the name of Jesus, be healed. यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ कि इन्हें चंगाई मिले। Father, we pray for their finances. पिता, हम प्रार्थना करते हैं इनके आर्थिक जीवनों के We लिए, pray for their family. उनके परिवारों के लिए। We pray for every problems that they are going through in their family. हर एक समस्या से जो वो गुजर रहे हैं अपने परिवार में, उसके लिए मैं Our प्रार्थना God is करता a हूँ। God who takes us out of every problem. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें समस्याओं से बाहर निकालता Right है। now, in the name of Jesus, अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम I में speak your blessing, Lord. मैं आपके आशीर्वाद को बोलता हूँ प्रभु जी, Father, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में। पिता, thank you, Father, you have heard all our prayers. धन्यवाद कि आपने हमारी हर प्रार्थना को सुना। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। So,
I'm sure God has touched you all. मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको छुआ है. You know, the one thing that can pull down miracles from heaven एक ऐसी चीज जो स्वर्ग से चमत्कार को लेकर आ सकती है is your faith. वो है आपका विश्वास. With faith, विश्वास के साथ nothing is impossible कुछ भी असंभव नहीं है, because God has deposited faith in us. क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस विश्वास को दिया है. So, in faith, if you're sick, just do whatever you couldn't do before. अगर बीमार थे आप तो पहले जो कुछ नहीं कर सकते थे वो अब करिए विश्वास के साथ. If you have the medical reports, go and check your doctor again and ask for the medical reports again. अगर इसके पहले आपके पास मेडिकल रिपोर्ट्स थी जो कह रही थी कि आप बीमार हैं, फिर एक बार जांच करवाइए, इस बार आप बीमार नहीं होंगे. Believe that He has done everything. विश्वास रखिए कि उसने सब कुछ कर दिया है God will do everything possible. और परमेश्वर हर एक चीज को पूरा करेंगे. Amen. आमीन. So I'm so excited to share the word that God has put in my heart. मैं आज बहुत उत्सुक हूँ क्योंकि परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया है उसके लिए. I believe this word is not just for us, for today or for tomorrow, but this is for the whole generation. This is the foundation of what God has laid on us through Jesus. मैं इस बात का विश्वास रखता हूँ कि ये आज के लिए वचन, ये हमारे लिए वचन नहीं है, पर इस पूरी पीढ़ी के लिए है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है. Because the word says, when we know the truth, truth shall set us free. क्योंकि वचन कहता है, बाइबल कहती है कि जब हम सत्य को जानेंगे, सत्य हमें बंधन मुक्त करेगा. We don't want to fight, or we don't want to try, or we don't want to struggle to inherit the freedom. By knowing the truth, we are free. हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें छीना झपटी करने की जरूरत नहीं है. परमेश्वर ने हमको वो स्वातंत्र्य, वो मुक्ति दी है बस सत्य के द्वारा. So I pray that God will take us into His truth so that we can inherit the freedom that is hidden in the Word of God. मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम परमेश्वर के सत्य को जाने ताकि वो मुक्ति और वो स्वातंत्र्य जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसे हम स्वीकार कर सकें. So God has given me a topic to speak about. The topic is this: परमेश्वर ने जो विषय मुझे दिया है वो विषय ये है, salvation from sin and death to His image and likeness. उद्धार पापों से और उद्धार मृत्यु से उसके रूप में बनने के लिए. It means इसका अर्थ इतना ही होता है we have received salvation from sin and death, कि हमने पाप और मृत्यु से उद्धार पाया है. and today that salvation is leading us towards His image and His likeness over our lives. और वही उद्धार आज हमें परमेश्वर के रूप में तैयार कर रहा है, परमेश्वर की रीति में रच रहा है. So today we're going to understand from God what is salvation through Jesus. आज हम परमेश्वर से ही सीखेंगे कि परमेश्वर से उद्धार पाने का अर्थ क्या So होता है. in order to understand the salvation, we need to first understand what we were before. उद्धार क्या होता है ये जानने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि उद्धार के पहले हम क्या थे. And we need to understand what happened through Jesus. यीशु मसीह के द्वारा क्या हुआ. And we need to understand through Him what we inherit. हमें ये समझने की ज़रूरत है कि उनके द्वारा क्या विरासत में हमें मिला. And then we need to understand whom we are in Christ Jesus. उसके बाद हमें ये भी समझना है कि यीशु मसीह में हम हैं कौन. So in order to understand all these mysteries, I want you all to go through John chapter 1 verse 12 to 13. इन सारे रहस्य को समझने के लिए मैं चाहता हूँ कि हम बाइबल की ओर जाए, यूहन्ना की ओर जाए, यूहन्ना 1:12 से 13. So this is the title verse. This is the foundation verse. ये जो विषय है आज का उसका मुख्य वचन यही है. So John chapter 1 verse 12 to 13. यूहन्ना 1 उसका 12 और 13. So I'll read in English first, then you can hear in Marathi, which says like this: But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name, who were born not of blood, not of the will of flesh, nor of the will of man, but of God. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं. वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं. So there are three major things that is mentioned in this particular verse. इस वचन में 3 मुख्य चीज़ों को लिखा गया है. Number 1, पहला, to receive Him. उसे स्वीकार करना, ग्रहण करना. Number 2, दूसरा, He gave the right to become His children. उसने अधिकार दिया अपनी संतान होने का. Number 3, तीसरा,
You are no more born of flesh or blood, you are born of God. हम शरीर के नहीं परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। So in order to know that today we are born of God, ये जानने के लिए कि आज हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, we need to understand that before we were not born of God, we were born of a different thing. हमें पहले ये समझना होगा कि इसके पहले हम परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुए थे, किसी और चीज से हुए थे। So now we're going to see of what we were born before. अब हम देखेंगे कि इसके पहले हम उत्पन्न किस चीज से हुए थे, And that is revealed in Romans chapter 5 verse 12 to 14. और ये लिखा गया है रोमियो 5 12 से 14 तक। So we're going to read Romans 5 chapter 12 to 14. हम पढ़ेंगे रोमियो 5 12 14। It says, therefore, वो कहता है इसलिए just as through one man's sin entered the world, जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया and death through sin, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, and thus death spread to all man, और इसी रीति में मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, because all sinned. क्योंकि सब ने पाप किया। So here it says, यहाँ ये कहते हैं because of one man, एक मनुष्य के द्वारा sin entered the world, पाप पृथ्वी पर आया, and because of sin, और पाप के द्वारा death entered. मृत्यु आई, And because as one man, the first man fall, और जैसे पहला इंसान गिरा, everyone become fallen. हर एक इंसान गिर गया, Because of he inherited sin in him. क्योंकि उसने विरासत में पाप को पाया। Because of that, everyone inherited sin. उसी के वजह से बाकी सभी लोगों ने विरासत में पाप को पाया। We were all inherited sin before. हम पहले से पाप में जन्म लिए थे, Because we were born from sin. क्योंकि हम पाप के द्वारा जन्मे हैं। That's why the word says, because of one man, all were fallen. इसीलिए वचन में लिखा है कि एक इंसान के द्वारा सभी गिरे। That's why it says, as one man fall, everyone carried sin. इसीलिए यहाँ पे लिखा है जैसे एक मनुष्य पाप में गिरा वैसे ही सभी गिरे। So because we were sinners, क्योंकि हम पापी थे, we couldn't understand his love. हम उसके प्रेम को समझ ना पाए। Whose love? The love of God. किसके प्रेम को? परमेश्वर के प्रेम को। We couldn't understand his works in our lives. उसके जो कार्य हमारे जीवन में है उसे हम समझ ना सके। We couldn't experience his glory उसके तेज का अनुभव हम ना कर सके, because we were covered with sin. क्योंकि हम पाप से ढके हुए थे। But because of Jesus, पर यीशु मसीह के द्वारा, because what Jesus has done for us, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया उसके द्वारा, through him, उसी के द्वारा we were taken away from our sinful life. हमारे पापी जीवन से हमें छुटकारा मिला। And that's where the word says in what we read before in John chapter 1 verse 12. और इसीलिए वचन यूहन्ना 1:12 में कहती है But as many as received him, कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, to him he gave the authority to become the children of God. उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। So number one truth that we need to understand today, पहला सत्य जो आज हमें समझना है, when you received him in your life, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, the moment you received him, जिस क्षण हम उसे ग्रहण करते he हैं, gave you the right to become his children. उसी पल हम उसकी संतान बनने का अधिकार पाते हैं। The word didn't say the moment we received him, he gave us the eternal life. वचन ये नहीं कहती कि जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो हमें सार्वकालिक जीवन मिलता है, Because that's what religion teaches us. धर्म हमें ये सिखाता है You accept Jesus, you will receive the eternal life, moksha. कि जब तुम यीशु मसीह को स्वीकारोगे तब तुम्हें सार्वकालिक जीवन मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। But the word clearly says, पर वचन साफ साफ रीति में हमें the बताती moment है you received him, कि जिस क्षण तुम उसको ग्रहण the करोगे, first thing he did, पहली बात जो वो करता है he gave you the authority to become his children. वो तुम्हें अधिकार देता है उसकी संतान होने का। Today we need to understand that I am a children of God. आज हमें ये समझना है कि हम उसकी बेटी, उसके बेटे हैं। Through him, I'm not just inherit the eternal life, but more than that, I have become his son. कि यीशु मसीह के द्वारा सिर्फ मैंने सार्वकालिक जीवन को ही नहीं बल्कि उसकी बेटी बनने के अधिकार को भी पाया है। So, but in order to make us his children,
उसकी संतान होने के लिए God wants to do something huge. परमेश्वर कुछ तो महान हमारे जीवन में करना चाहते हैं। That huge thing is this. वो महान चीज ये है, He need to break the chain of flesh, the chain of sin in our life. हमारे जीवन में पाप के जो बंधन है, हमारे शारीरिक जो बंधन है, उसे वो तोड़ने पड़ते हैं। He need to change the inheritance of our life. हमारे जीवन में हमें पहले से मिली हुई जो विरासत है, जो लेकर हम संग चलते हैं, जो जकड़ हमारे जीवन के ऊपर है, उसे वो तोड़नी पड़ती है। As we read before in Romans that we from Adam we have inherited sin. रोमियो में जैसे हमने पढ़ा कि आदम के वक्त से हमारे ऊपर पाप रहा है। So God needs to break that chain. परमेश्वर को उस जकड़ को, उस पाप के बंधन को तोड़ना पड़ता And है। He need to make us into His inheritance. उसके रूप में हमें बनाना पड़ता है। He want to make us into His nature. उसका जो नेचर है उसमें हमें ढलना पड़ता है, उसके गुणों के साथ हमें बनाना पड़ता है। And that's what it is written in Romans chapter 5 verse 15 to 21. रोमियो 5 उसका 15 से लेकर 21 में यही लिखा है। It's a long verse but I need to just bring the content of those verses. ये बहुत बड़ा वचन है, पर मैं इसका जो सारांश है वो आपको बताऊंगा। I'll all encourage you all to read that in your homes, Romans 5:15 to 21. मैं आप सभी को प्रेरित करता हूँ कि आप जब घरों में होंगे तब ये पढ़े। So the whole message of these verses is one thing. इस वचन में जो लिखा गया है, जो सारांश है, वो मैं आपको बताता हूँ। As how through one man disobedience entered the earth. कि एक व्यक्ति के द्वारा कैसे इस जगत में निराज्ञाकारिकता आई, Is the same way through one man's righteousness has entered the earth. और वैसे ही कैसे एक आदमी के द्वारा इस जगत में आज्ञाकारिकता आई और सार्वकालिकता आई। As how through one man sin has entered. कैसे एक व्यक्ति के द्वारा पाप इस जगत में आया, Is through the same way through one man the God's nature and likeness towards the humanity has been showered up. और वैसे ही कैसे दूसरे व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर का रूप इस जगत में आया, परमेश्वर जैसा कोई इस जगत में आया। So how Jesus brought that inheritance? यीशु मसीह ने इन चीजों को कैसे इस पृथ्वी पर लाया, What Jesus has done for us? यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। So we're going to see that in depth. हम आगे जाकर इन चीजों को पढ़ेंगे। I want to turn your Bibles all towards Romans chapter 8 verse 3. मैं चाहता हूँ कि हम बाइबल में जाए रोमियो 8:3 की ओर। So I'll read in English. मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। For what the law could not do, in that it was weak through flesh. क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाबिल होने के लिए। On the account of sin. So He condemned sin in the flesh. वो पाप को उसने दंड दिया शरीर में आकर। I want you all to specifically start to meditate on the last word that is written in this verse. मैं चाहता हूँ कि जो आखिरी भाग है इस वचन का, उस पर आप सभी लोग मनन करें। He condemned sin in the flesh. शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। You know, when Jesus came out of his 30 years of mysterious life where no one knew what happened in the 30 years of Jesus. जब यीशु मसीह 30 साल बाद बाहर आए, जो वो 30 सालों में जो उन्होंने किया, वो जो जब रहस्य था, उसके बाद जब वो बाहर आए। So after that Jesus was baptized by John in the water. उसके बाद यूहन्ना ने उन्हें बपतिस्मा दिया था पानी में। The moment Jesus got baptized, जिस क्षण यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, the Holy Spirit gave an evidence from the heaven that He is the begotten Son of God. पवित्र आत्मा ने स्वर्ग से हम सभी को ये प्रमाण दिया कि वो यीशु मसीह जो है वो पुत्र है, परमेश्वर के पुत्र है। But the moment heaven declared that He is the Son, जैसे ही स्वर्ग से वो पुकार आई और हम सभी को पता चला कि हाँ वो परमेश्वर का बेटा है, the next chapter begins.
दूसरे अध्याय में आगे लिखा है, It begins with the temptation for Jesus. वो शुरू होता है यीशु मसीह के लिए लालसाओं के साथ। So what we are discussing here is all in Luke chapter 3 and chapter 4. और हम सब ये जो पढ़ रहे हैं ये लूका की किताब में है। So we all go through Luke chapter 4 verse 1 to 13. हम लूका की किताब में जाएंगे, उसका पहला अध्याय 4 से पढ़ेंगे। That is the complete verse which speaks about the temptation for Jesus in the wilderness. ये जो वचन है, इस वचन में लिखा गया है कि यीशु मसीह जब उस अकेलेपन में थे तो उनको कैसा सताव हुआ। We're not going to read the whole part of the temptation in the wilderness, but we're going to see some major things, the hidden mysteries in that particular chapter. हम ये पूरा अध्याय नहीं पढ़ेंगे, पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो उनके साथ हुई उन्हें ज़रूर पढ़ेंगे। So let us read the first verse, Luke chapter 4 verse 1. लूका उसका चौथा अध्याय और उसका पहला वचन। Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यारदेन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। Number 1. पहला भाग, Jesus was the first flesh यीशु मसीह पहले ऐसे देह में ऐसे इंसान थे who was filled with the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। So the word says इसीलिए वचन हमें बताती है he was filled with the Holy Ghost कि वो आत्मा से भरा हुआ था and he was returning from Jordan और वो यरदन से लौट रहा था and he was led by the Holy Spirit into the wilderness. और आत्मा उसे चला रही थी जंगल में। So in wilderness जंगल में अकेलेपन में there are two people ऐसे दो लोग हैं, having two different missions. दो अलग अलग देह हैं उनके। The two people are one, the Spirit of God. वो परमेश्वर के दो हिस्से हैं और परमेश्वर के व्यक्ति है। So in that what I'm trying to say is this, that apart from Jesus there are two other person in the wilderness. इसमें जो मैं कहना चाहता हूँ, इतना ही कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को छोड़कर वहाँ दो व्यक्ति थे। The first person is the Spirit of God. पहला परमेश्वर का आत्मा, The second is Satan. दूसरा शैतान। Spirit of God wants to condemn sin through Jesus, through the flesh of Jesus. परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि वो पाप को दंड दे यीशु मसीह के द्वारा। Because that's why we are reading in the first verse that he was led by the Spirit to the wilderness. इसी को हमने पहले वचन में पढ़ा कि आत्मा उसे चला रहा था। Why he was led by the Spirit? क्यों वो आत्मा के कारण चल रहे थे? Why Jesus need to be led by the Spirit into a wilderness? क्यों जरूरत थी यीशु मसीह को आत्मा के द्वारा चलने की? Probably religion will just teach us that Jesus need to get tempted. धर्म हमें सिखाती है कि यीशु मसीह के लिए जरूरत थी कि वो परीक्षा से होकर Or गुजरे। some our natural understanding can bring to an thing that Jesus need to go through those temptations in order to prove that he is holy. ये हमारी समझ हमें ये बताएगी कि यीशु मसीह को परीक्षा से होकर गुजरने की जरूरत है ताकि वो प्रमाणित करे कि वो परमेश्वर है। But that just not a mere thing. There is a more deeper thing that what God has planned over here. पर वो बस उतना ही नहीं था, इसको बहुत ज्यादा और एक अर्थ है जो अंदर में छिपा है। The deep reason for Spirit of God to lead Jesus into the wilderness was this. इसके पीछे की जो असली वजह है वो ये है, Because Spirit of God wants to condemn sin through the flesh of Jesus. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा चाहता था कि यीशु मसीह के शरीर के द्वारा शरीर में वो पाप को दंड दे। Spirit of God wants to break that chain of flesh inheriting the nature of first Adam. परमेश्वर का आत्मा ये चाहता था कि शरीर में वो जो पाप का जो वो वृत्ति है, उस वृत्ति को वो दंड दे जो आदम के साथ हमारे साथ भी आई है। So that was the mission of first man, first person, the Spirit of God. ये जो विजन था, ये जो दृष्टांत था, वो परमेश्वर की आत्मा का था। And there is another opponent here. और इधर विरोधी रूप में और कोई भी खड़ा है। Devil, the Satan. जो विरोधी है वो यहाँ पे शैतान है। What was the mission of Satan here? शैतान क्या करना चाहता था? The mission of Satan was this. Satan wants to tempt and corrupt Jesus so that God's plan for salvation get eternally aborted. उसका देह बस इतना ही था कि वो यीशु मसीह को पाप में गिराना चाहता था ताकि परमेश्वर का जो पूरा
जो पूरा प्लान था, जो पूरा उन्होंने रचा था हमारे लिए, वो सब बिगड़ जाए। So one place, the Holy Spirit, Spirit of God, wants to break the sin and condemn the sin through the flesh of Jesus. यहाँ पर जब हम देखते हैं तो एक जगह पर परमेश्वर का आत्मा है जो पाप को दंड देना चाहता है यीशु मसीह के शरीर के द्वारा। On the other hand, Satan, who wants to abort the salvation to the humanity by making Jesus to tempt and corrupt through sin. और दूसरी ओर शैतान खड़ा है जो चाहता है कि मैं मानवता का जो उद्धार है वो रुकवाऊं ताकि मैं यीशु मसीह को पाप में But गिराऊं। if you read the whole chapter, पर अगर आप पूरे अध्याय को पढ़े, we can see Jesus who was filled with the Holy Spirit हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो पवित्र आत्मा से भर चुके थे। break every deceiveness of the devil. शैतान ने हर वक्त जब उन्हें फंसाने की कोशिश की, उन्होंने उसे जवाब दिया। Overcome every lies of the devil. शैतान ने जो हर एक झूठ उनसे बोला, उस हर एक झूठ को उन्होंने पार किया And he victoriously raised from the sin. और विजय के साथ उस परीक्षा से उठकर खड़े रहे। Sin couldn't contain him. पाप उन्हें रोक ना सका। Jesus was full of the Holy Spirit. यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। Today I want to tell you something. आज मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, What was the mystery in Jesus यीशु मसीह में जो रहस्य था that helped him, that prompted him to overcome flesh and temptations? जिसने उनकी मदद की परीक्षाओं में बाहर आने की, जब उनके सामने आकर उनकी परीक्षा ली गई पाप के लिए, तब वो उभर कर बाहर आए, जिस चीज ने उनकी मदद की। The secret is this, my dear people. मेरे प्रिय लोगों, रहस्य बस इतना ही The है। secret is the Holy Spirit. रहस्य है पवित्र आत्मा। The secret is the Spirit of God. रहस्य है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। Because Jesus was filled with the Holy Spirit. क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। Even though the word says, we read before, even though he carried the flesh which was inheriting sin for years and years. परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह में भी शरीर था, वो भी देह से बने हुए थे, वही देह जिसमें पाप करने की वृत्ति होती है। That's what we are reading in Romans 8:3. रोमियो 8:3 में हमने यही पढ़ा था। God sending his own son in the likeness of sinful flesh. कि पापमय देह की समानता में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। Means God Father sent Jesus into the same sinful flesh of what we were before. कि जिस पापी देह में हमने जन्म लिया था, उसी पापी देह में यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने भेजा। But the difference is, पर इसमें भेद और फर्क इतना ही है even though Jesus took the life through the sinful flesh, कि यीशु मसीह ने जन्म पाप के देह से लिया हो, but still he was filled with the Holy Spirit. पर फिर भी वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। And because he was filled with the Holy Spirit, और क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, his flesh, his spirit and soul was not corrupted. उनका शरीर, उनकी प्राण और उनकी आत्मा करप्टेड नहीं थी। He was revealing the image and likeness of Father. वो पिता का जो रूप है, पिता का जो चरित्र है, उस चरित्र को लेकर चलने वाले It is थे, because he was filled with the Holy Spirit. क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। I want to just take you all to what happens when you are filled with the Holy Spirit. मैं आप सभी को बस यही दिखाना चाहता हूँ कि जब आप पवित्र आत्मा से पूर्ण रीति में भरते हैं तो होता क्या है। So the truth of what happens is written in Acts chapter 1 verse 5 to 8. इसका जो सत्य है वो लिखा है प्रेरितों के काम उसका 1:8। Acts of the Apostle chapter 1 verse 5 till 8. प्रेरितों के काम उसका 1 उसका 5 से 8 पढ़ेंगे हम। I'll read in English. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। So this is the content behind this verse is this. Apostles, God set disciples to wait for the power of the Holy Spirit to descend over their lives. इस वचन के पहले हुआ ये था कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि रुकना और
मेरा जो सामर्थ है, परमेश्वर का जो सामर्थ है वो तुम पर उतरेगा। And Jesus is telling what I'm going to give to you. यीशु मसीह उन्हें यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो उन्हें क्या देंगे। What I'm going to give to is this. John baptized with water. यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना ने तुम्हें बपतिस्मा पानी से दिया है। The baptism that happens once in your life. वो बपतिस्मा जो जीवन में एक ही बार आपके साथ होता है। That baptism that you will cherish about your salvation. कि अपने उद्धार के लिए आप खास रूप में उस बपतिस्मे को याद रखेंगे। You will take it once and you will keep it as a memory forever. एक ही बार उस बपतिस्मे को आप लेंगे और पूरे जीवन भर उसे याद के रूप में याद That's रखेंगे। what happens in the water baptism. यही होता है पानी के बपतिस्मे। But I'm not going to just leave you with the water baptism. पर यीशु मसीह कहते हैं मैं यहीं पे तुम्हें छोड़ नहीं दूंगा, I will baptize you with the Holy Spirit. मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दूंगा। Holy Spirit and fire. पवित्र आत्मा और अग्नि, The baptism which will happen every day of our lives. वो बपतिस्मा जो तुम्हारे जीवन के हर दिन तुम्हारे साथ A होगा। baptism that is not just a day experience. एक बपतिस्मा जो बस एक वक्त का अनुभव नहीं है, It is a baptism which will not be just a memory for us. जो हमारे लिए सिर्फ याद नहीं होगा, A baptism that we will experience every day of our life. एक ऐसा बपतिस्मा जो हमारे जीवन के हर पल हम अनुभव करेंगे। So Jesus was telling, I'm not going to baptize just like what John has baptized. यीशु मसीह उन्हें यहाँ पे ये बताते हैं कि यूहन्ना जैसा बपतिस्मा मैं तुम्हें नहीं दूंगा, I will baptize you with the Holy Spirit. मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दूंगा। So in the verse 8, 8वें वचन में it says like this. वो कहते हैं You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। One thing we all should understand, my dears and brothers. मेरे प्रियो, हमें सभी को ये समझने की जरूरत है When we receive Holy Spirit, कि जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं we are receiving power. तो हम सामर्थ को पाते The हैं, power that the world cannot contain. एक ऐसा सामर्थ जो इस जगत के पास नहीं है, The power that will break every darkness. एक ऐसा सामर्थ जो हर अंधकार को चीर कर बाहर आता The है, power of God that will make us to move forward into His image and likeness. परमेश्वर का ऐसा सामर्थ जो हमें उसके चरित्र में ढलता जाता है, उसके चित्र जैसा बनाता The जाता है। power of God that you can experience in your flesh, in your soul and in your spirit. हमारे प्राण आत्मा शरीर में जिस सामर्थ को हम महसूस कर सके, ऐसा परमेश्वर का सामर्थ। That power of God will never make you a fallen, but will make you a witness to the ends of the earth. परमेश्वर का ऐसा सामर्थ हमें कभी भी पाप में गिरने नहीं देगा, पर परमेश्वर में उसकी साक्षी बनाएगा। So that's what Jesus is saying. You know what? You need to understand. You need the baptism of the Holy Spirit because you need power to walk like me in order to condemn sin in your flesh. यीशु मसीह यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें सामर्थ की जरूरत है ताकि तुम अपने देह में पाप को विरोध करके, पाप को हरा के जी सको। You know what is the beautiness of Jesus? यीशु मसीह की जो सुंदरता है वो आप जानते हैं? He has given us what He had. उसके पास जो था ना, वो सब कुछ उसने हमें दिया है। He had Holy Spirit in Him. उनके पास पवित्र आत्मा थे And He overcome the world in flesh through the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के कारण ही देह में उसने जगत को मात दी, हराया। And Jesus didn't stop there. और यीशु मसीह वहाँ रुके नहीं। He has given us the Holy Spirit as a gift. यीशु मसीह ने हमको भी पवित्र आत्मा दिया है वरदान के रूप में, So that even you can walk like Him. कि आप भी उसी के जैसे चल सके, So that even you can walk like Father. कि आप भी पिता के जैसे चल सके, So that even you can say that I am like Father. कि आप भी कह सके कि हाँ मैं पिता जैसा हूँ, जैसी हूँ। Yes, what you are hearing is true. हाँ, आप जो सुन रहे हैं वो सत्य है। You can walk in His image and likeness. आप उसके चरित्र में चल सकते हैं, उसके समान बन सकते हैं। The salvation that you received through Jesus is not just to receive the eternal life. वो उद्धार जो आपने यीशु मसीह से पाया है वो बस सार्वकालिक जीवन को स्वीकार करने के लिए नहीं है, Because in fact the word says eternal life is the beginning gift of your salvation. वचन हमें बताती है कि सार्वकालिक जीवन शुरुआत का वरदान है हमारे उद्धार का। Which means the moment you received Him, इसका अर्थ यही है कि जिस
क्षण हम उसे स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, you became his children. हम उसके संतान बनते हैं। When you became his children, जैसे हम उसकी संतान बनते हैं, you have received eternal life from God. आप और मैं परमेश्वर से सार्वकालिक जीवन को पाते हैं। Eternal life is the beginning blessing, is the beginning of what Jesus has done through the salvation that he has gifted us. सार्वकालिक जीवन बस शुरुआत है उन आशीषों की जो यीशु मसीह ने हमें दिए हैं उद्धार के द्वारा। But now the question is, अभी यहाँ पे प्रश्न बस इतना ही so है, what is the ultimate project, or what is the ultimate power of salvation through Jesus? इन सभी के पीछे का यीशु मसीह का असली जो उद्देश्य है वो क्या है उद्धार के पीछे का? Means what Jesus want to accomplish through the salvation that he has gifted us. कि जो उद्धार हमें यीशु मसीह ने दिया है उसके द्वारा वो क्या पाना चाहते हैं? The ultimate result of what Jesus has kept through salvation is making you and me into his image and his likeness. यीशु मसीह के उद्धार के द्वारा जो अंतिम परिणाम वो हमें पाना चाहते हैं वो बस यही है कि हम उनकी समानता में दिखे, उनके चरित्र में ढले। Church, I want you all to believe and understand one thing. कलीसिया में चाहता हूँ कि आप सभी जन इस बात पर विश्वास रखें और इसे समझें। You are not waiting to receive an eternal life. You are already in eternal life. आप सार्वकालिक जीवन को स्वीकार करने के लिए रुके हुए नहीं हैं, आप इसी वक्त सार्वकालिक जीवन में जी रहे हो। In this world, when you are living and when you receive Jesus, you are already started to live the eternal life. इस पृथ्वी पर जब आप जी रहे हो, इस पृथ्वी पर जब आपने यीशु मसीह को स्वीकारा है, ग्रहण किया है, आप सार्वकालिक जीवन को जी रहे हो। So eternal life has already started in you. आपके लिए सार्वकालिक जीवन शुरू हो चुका है। So now why you are living further? अभी आगे आप जी क्यों रहे हो? What we are called to live then? हम जी क्यों रहे? हमारे जीने का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of our life then? हमारे जीने का, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? The purpose of our life is this, that we will reveal his image and his likeness in this earth. हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम उसके चरित्र को प्रकट करें, उसकी महिमा को प्रकट करें। And that's what we are seeing when God baptized the apostles with the Holy Spirit. और वही हमने देखा जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को, प्रेरितों को बपतिस्मा दिया। We are seeing in the life of Peter. पतरस के जीवन में हमने इसे देखा। Peter who received the revelation that Jesus Christ the Son of Lord. पतरस जिसने उस प्रकटीकरण को, उस प्रकाशन को पाया कि ये यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। Jesus who received the revelation that Christ Jesus is the Messiah. जब उसने, यूहन्ना ने जब इस प्रकाशन को पाया कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। So when Peter received this revelation, जब पतरस ने इसे पाया था, Jesus said, "This revelation is not from your flesh, but from the Father." यीशु मसीह ने उन्हें बताया था कि ये तेरे शरीर से पाया हुआ प्रकाशन नहीं है पर पिता ने दिया हुआ है। And moment he received the revelation, Jesus said, "Peter, you are the rock, and on this rock I will build my church." जिस क्षण उसने इस प्रकाशन को पाया था, यीशु मसीह ने उससे कहा था कि तेरे ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा। So Peter was filled with the revelation. पतरस जो था उसमें वो प्रकाशन भरा हुआ था, वो उस प्रकाशन से भरा हुआ But था। from he received the revelation the days later, few days later, पर कुछ दिनों के बाद, प्रकाशन को पाने के बाद, when Jesus was arrested, जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, when Jesus was about to crucify, जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाने का क्षण आया, Peter who said, "I won't leave you and I will follow you until the end." वही पतरस जिसने कहा था कि प्रभु मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। That same Peter who received the revelation, the deep revelation from God. वही पतरस जिसने प्रकाशन को परमेश्वर से पाया था, That same Peter denied him. उसी पतरस ने उसे नकारा। That same Peter who had a strong determination in his flesh that I will never leave my master. वही पतरस जो हमेशा कहता था, जो अपने गुरुजी से प्रेम करता था, जो कहता था मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, Denied him and ran away. उसी ने उसे 3 बार नकारा और भाग गया। But the moment when Holy Spirit filled him, पर जिस क्षण पवित्र आत्मा ने उसे भरा, but the moment when Holy Spirit has filled with his baptism, जिस क्षण पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसने if you are पाया, reading in Acts 1 and 2,
अगर आप प्रेरितों के काम 1-2 में पढ़ेंगे, we can see the moment when Holy Spirit entered upon the disciples, the first to raise up in boldness and to proclaim the word of God was Peter. हम देख सकते हैं कि जब प्रेरितों को बपतिस्मा मिला, जब चेलों का बपतिस्मा हुआ, तो सबसे पहला जो खड़ा हुआ परमेश्वर के वचन में वो पतरस था, जिसने प्रचार किया। If you ask to Peter, अगर आप पतरस से पूछे Peter, you are the same one who denied him days before. कि तू तो वही है जिसने नकारा था यीशु मसीह को कुछ दिनों But पहले, what happened to you now? अब तुझे क्या हुआ? What made you to stand up and to proclaim the word of God with boldness? ऐसा क्या हुआ कि तू इतने धैर्य से सामने खड़े होकर परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा है? What made you to reveal that you are the apostle, the disciple of Jesus? ऐसा क्या हुआ जिसके कारण तू आज प्रकट कर रहा है कि तू प्रेरित है, यीशु मसीह के नाम का प्रेरित I'm है? sure Peter will say this. मैं खातिर से ये कह सकता हूँ, निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि पतरस ये कहेंगे It's true, I denied him before कि हाँ, मैंने उसे नकारा था because I was just filled with my strength. क्योंकि मैं अपनी शक्ति से भरा हुआ I था, just know what I can do, क्योंकि उस वक्त मैं बस इतना जानता था कि मैं क्या कर but सकता I हूँ, failed with my own strength. पर अपनी शक्ति में मैं हार चुका हूँ। I thought revelation is with me, मैं ये सोचता था कि प्रकाशन मेरे साथ है, but revelation was not just enough for me. पर प्रकाशन मेरे लिए काफी ना था। But when the fire of God, when the Holy Spirit, when the baptism of Holy Spirit fall upon my life, पर जिस क्षण पवित्र आत्मा मुझ पर उतर आए, जिस क्षण परमेश्वर की अग्नि मुझ पर उतरी, when I'm baptized with Him, जब मेरा बपतिस्मा पवित्र आत्मा से हुआ, my life changed. मेरा जीवन बदल I'm गया। filled with the strength. मैं एक नई शक्ति से भर I'm चुका filled हूँ। with the power to understand the one who's living in me is greater than the world. मैं इस सामर्थ से भर चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि जो मेरे अंदर रहता है वो उस जगत में रहने वाले से अधिक महान है। Today I want to speak to each and every one of you. आज मैं आप सभी से वैयक्तिक रूप में ये बात करना चाहता हूँ। Do you feel weak? निजी रूप में आप सभी को ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको कमजोरी लगती है? Are you failing in something back to back? कि क्या आपको लग रहा है कि बार बार किसी न किसी चीज में आप गिर रहे हो? Are you feeling that being years of born again life, still my life is not yet transformed? कि इतने सालों से मेरा नया जन्म हुआ है परमेश्वर में, पर फिर भी मैं नया व्यक्ति नहीं हूँ। Do you feel that I am frightened to share Jesus to my family or the one who is not yet saved? क्या आपको लगता है कि मुझे आज भी डर लगता है परमेश्वर के नाम का प्रचार करने का अपने परिवार में, अपने मित्रों में? Today I want to tell you that knowing Jesus is not just enough. You need to experience Him through the baptism of the Holy Spirit. आज मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को जानना काफ़ी नहीं है, परमेश्वर का बपतिस्मा होना ज़रूरी है ताकि आप उसे समझ सके। You need the fire of God. You need the baptism of the Holy Spirit in order to walk in His likeness and image, in order to become a witness for Jesus. आपको परमेश्वर की अग्नि की, उसके सामर्थ की, उसके बपतिस्मे की ज़रूरत है ताकि आप समझ सके, उसमें चल सके और ये जान सके कि वो कितना महान है। Because my dear brothers and sisters, world is waiting for us. मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो जग है, ये जो जगत है, ये हमारे लिए रुका हुआ है। Because world is waiting to see the likeness of God through our lives. हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की समानता, परमेश्वर के चरित्र को देखने के लिए वो रुके हुए हैं। Because that's why the word says in 1 John 5:4. इसीलिए ये पहला यूहान 5:4 में परमेश्वर का वचन ये कहता It है, says, "For whatever is born of God overcome the world." क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता And है, this is the victory that has overcome the world, our faith. और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होता है वो हमारा विश्वास The है। meaning of this verse is this. इस वचन का अर्थ इतना ही है, When you started to believe and having faith that you are born of God, कि जब तुमने विश्वास रखना शुरू किया कि तुम परमेश्वर के द्वारा जन्मे हो, you will overcome the world. उस क्षण से तुम संसार पर विजय को प्राप्त You will करोगे। never become a captive for the world, but you will overcome the world. तुम कभी भी संसार के जकड़न में नहीं जियोगे, पर संसार पर विजय प्राप्त करके Today, जियोगे। God wants to impart that faith in your life to experience that you are no more born of the old flesh of Adam. You are now in Christ, born of God.
आज परमेश्वर आप में उस विश्वास को डालना चाहते हैं कि आप एक नए व्यक्ति हो। आप आदम के पाप की वृत्ति को लेकर जीने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि यीशु मसीह में उत्पन्न हुए नए व्यक्ति हो। That's why the word says that in Christ we are new creations. और इसीलिए वचन हमें बताती है कि यीशु मसीह में तुम नई उत्पत्ति हो। You are a new creation. तुम एक नई उत्पत्ति हो। You are no more of that fallen piece of Adam. आदम जो पाप के कारण गिरा था, उसका आप विरासत को लेकर नहीं जीते। You are no more of that first Adam. वो पहला व्यक्ति आदम जो था, उसके विरासत को लेकर आप नहीं जीते। You are from the last Adam, that is Jesus. आप आखिरी आदम यानी यीशु मसीह की विरासत को लेकर You जीते are हो। you doesn't need to inherit any of the first Adam's nature, आपको पहले आदम के चरित्र को लेकर जीने की कोई भी जरूरत नहीं है, because the moment you are born again, क्योंकि जिस क्षण आपका नया जन्म होता He है, has called you that you are His children. उसने आपको बुलाया है और कहा है तू मेरी संतान है। And the moment He has called you as children, और जिस क्षण उसने आपको बुलाया है अपने संतान इस रूप में, He has filled you with His Holy Spirit. तब से अपने पवित्र आत्मा से उसने हमें भरा है। And when you are filled with the Holy Spirit, और जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, you are born of God. आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। Today start to believe in faith and walk as a person who is born of God. आज से विश्वास रखिए और चलने लगिए, इसे समझकर चलिए कि आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, नई उत्पत्ति है। Don't get deceived by devil anymore. जब शत्रु आकर आपको फंसाए तो उसके जाल में अटकना नहीं। You are no more of first Adam in Christ Jesus. आप यीशु मसीह में जीने वाले हैं, पहले आदम में नहीं। You belong to the last Adam. The last Adam is Jesus. आप आखिरी आदम के हैं और वो आखिरी आदम यीशु मसीह है। And I want to get you to the last verse, which is very important. मैं चाहता हूँ कि मैं आपको आखिरी वचन की ओर लेकर जाऊँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। This word explains of what the world is waiting for. ये वचन हमें बताती है, समझाती है कि ये जो दुनिया है ये किस चीज़ के लिए रुकी हुई है। Today there are a lot of things happening around us. आज हमारे आजू बाजू अनेक चीज़ें होती है। This COVID has started a new season. From this COVID, a new season has started in the spirit. कोविड के कारण एक नया जो कालावधि है वो शुरू हुआ है। We all knew that we are walking in the end times. हम सब जानते हैं कि हम आखिर के समय में हैं। So you might hear that there are a lot of prophecies are fulfilled for the end times. हम सुनते आ रहे हैं कि अनेक जो भविष्यवाणियां की गई थी वो पूरी हो रही है। But there is one major word that need to get fulfilled before we are going to see the groom that our Jesus coming down. यीशु मसीह को हमें लेते आने के लिए जो वक्त है, जब हम उन्हें देखेंगे कि वो आ रहे हैं हमें लेकर जाने के लिए, वो वक्त आने के पहले एक आखिरी वायदा है जो पूरा होगा। There is one major thing that need to happen. एक मुख्य चीज है जो होनी है। That is in Romans 8:19. वो रोमियो 8:19 में है। The verse says like this. वचन हमें बताती है, For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing or the revealing of the sons of God. क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। Do you know why it is still waiting? जानते हो क्यों अभी भी वो रुके हुए हैं? Do you know why Jesus is still waiting? जानते हो क्यों यीशु मसीह आज भी रुके हैं? Because this world, क्योंकि ये दुनिया, this creations, ये जो हमारे आजू बाजू सारी चीजें जो परमेश्वर ने रची है, they are waiting for the sons of God to be manifested through our lives. ये हर चीज रुकी है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रकट हो। Means the world is waiting to see God's image and likeness through us. ये जगत रुकी है कि परमेश्वर के जो पुत्र यानी जो हम हैं, हम परमेश्वर के चरित्र को दिखाए। It is not something we can run and catch it. ऐसा कुछ नहीं है जिसके पीछे भागकर हम इसको स्वीकार कर ले, प्राप्त कर ले। Only way to walk in the image and likeness is to be filled with the Holy Spirit. परमेश्वर की समानता में, उसके चरित्र में जीने के लिए एक ही चीज हमें चाहिए और वो है पवित्र आत्मा से भरा हुआ We जीवन। need the Holy Spirit, my brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई बहन, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। Body of Christ doesn't need vainful sermons. यीशु मसीह के शरीर को
दासों की या दासियों की जरूरत से ज्यादा पवित्र आत्मा की Body जरूरत of Christ doesn't need the things of the earth. है। इस दुनिया की चीजें उसे नहीं चाहिए। Body of Christ doesn't need more sermons about how powerful is coronavirus. कोरोना वायरस कितना शक्तिशाली है इसके बारे में उन्हें सुनने की जरूरत Body नहीं of है। Christ doesn't need to speak more about how practically we can overcome this virus. ये जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे हम इस कोरोना वायरस पर मात करें। Body of Christ need to understand that we need the Holy Spirit. यीशु मसीह के शरीर को, यीशु मसीह की कलीसिया को इतना ही जानने की जरूरत है कि हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। Body of Christ needs the baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की जरूरत है। World is waiting for us. ये जो जगत है ये हमारे लिए रुका है। Creations are waiting for us. हमारे आजू बाजू की हर एक रची हुई चीज हमारे लिए रुकी Souls है। are waiting for us. हमारे लिए आत्माएं रुकी है। Pune is waiting for us. पुणे हमारे लिए रुका हुआ है। Maharashtra, India is waiting for us. महाराष्ट्र हमारे लिए रुका है। We need the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की जरूरत We है। need the power of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। We cannot divert Holy Spirit anymore anywhere. हम कहीं पे भी इन चीजों को छोड़ नहीं सकते। So let us all understand and crave and desire for the baptism of the Holy Spirit. मैं चाहता हूँ कि हम सभी जन इस चीज को समझे और हमारे अंदर इच्छा को जागृत करें ताकि हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पा सके। Before I'm concluding, मैं खत्म करने से पहले I just want to say this. मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। We meditated a lot, हमने आज बहुत चीजों पर मनन किया but है, few things I need to recap so that we can understand this in depth. पर कुछ चीजों को मैं वापस दोहराऊंगा ताकि हम समझ सके। Eternal life सार्वकालिक जीवन is an initial gift of salvation through Jesus. उद्धार की वजह से परमेश्वर ने दिया हुआ पहला वरदान है, पहला आशीष है। And you are already in eternal life. और हम सार्वकालिक जीवन में पहले से जी रहे हैं। And the salvation of Jesus यीशु मसीह का उद्धार completes us into walking in His image and His likeness through Holy Spirit. हमें पूरा करता है, पूर्णता में लाता है जब हम परमेश्वर के चरित्र में जीते हैं, जब हम परमेश्वर की समानता में अपने जीवन को जीते It हैं। is true we were born of first Adam, ये सच है कि हमने जन्म पहले आदम से लिया, but we no more have the trace of first Adam. पर उसका कुछ भी हम में बचा नहीं है। So the only way to experience the born of God through salvation of Jesus is by the baptism of the Holy Spirit. परमेश्वर के जन्मे हुए और परमेश्वर के चरित्र को जीने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की जरूरत है। Baptism of Holy Spirit should not be a fossil experience to just remember and cherish. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ऐसा कुछ ना हो जो हमें एक बार मिला और हमने याद रख लिया और हो गया। It should be our everyday experience in Him. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक ऐसी चीज है जो हमें हर दिन हमारे जीवन में अनुभव करनी है। That's why my brothers and sisters, इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, eagerly ask for His baptism in Holy Spirit every day हर दिन यीशु मसीह को मांगे उसके पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के to लिए, walk in His image and likeness. ताकि हम उसकी समानता में, उसके चरित्र में अपना जीवन जी सके। I want to tell something to the Resurrected Life Church. मैं रिजरेक्टेड लाइफ कलीसिया को बस इतना कहना चाहता हूँ। By influenced by the power of the Holy Spirit, I'm declaring you all gonna do mighty things in the city of Pune. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं इस चीज को आज घोषित करता हूँ कि आप अद्भुत चीजों को करेंगे पुणे शहर Pune में। is waiting for the manifestation of sons of God. पुणे रुका है कि परमेश्वर के बेटे और बेटियां प्रकट करें परमेश्वर के सामर्थ्य Or if को। you are watching through this online from different various parts of India, अगर भारत देश के बाकी भागों से आप मुझे देख रहे हो ऑनलाइन रूप में, or anywhere from the ends of the world, या इस दुनिया के कोई किसी भी छोर से, I want to tell you something that world is waiting for us. मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया रुकी है हमारे लिए, Not for us to walk in the worldly life, इस दुनिया जैसे जीने के लिए नहीं, but to walk in His image and likeness through the Holy Spirit. बल्कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में यीशु मसीह की समानता में जीने So के I'm going to लिए। pray right now, अभी इसी वक्त मैं प्रार्थना करूंगा and we going to pray for the baptism of the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए प्रार्थना करेंगे। If you are eagerly asking for God,
अगर आप परमेश्वर को मांग रहे हैं and asking Jesus that, Father, I need your Holy Spirit. और ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह मुझे आपके पवित्र आत्मा की जरूरत है, If you all understood that today that my life, a born again life, can be victorious only by the Holy Spirit. अगर आप समझ चुके हैं आज इस बात को कि मेरा जो मसीह जीवन है वो सिर्फ पवित्र आत्मा के कारण विजयी जीवन हो I सकता can है, reveal His image and likeness only through the Holy Spirit. कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की वजह से उसकी समानता को मैं प्रकट कर I सकता want you हूँ। all to pray today. मैं चाहता हूँ कि आप सभी जन इसी वक्त प्रार्थना करें। Today the fire of God is going to lift you up. आज परमेश्वर की अग्नि आपको ऊपर उठाएगी, Then you will be unstoppable. उसके बाद आपको कोई ना रोक पाएगा। No force of darkness can stop you. अंधकार की कोई भी शक्ति आपको रोक ना No पाएगी। power of sin can stop you. पाप का कोई भी बंधन, कोई भी सामर्थ आपको ना रोक His पाएगा। baptism of Holy Spirit will make you to dead to sin and to live in righteousness. उसका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको पाप करने के लिए मार डालेगा। आपके शरीर में जो पाप है उसका वजूद ना होगा। Let us all pray. हम सभी जन प्रार्थना करेंगे। Father, we pray in the name of Jesus. पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते Father, हैं। we thank you for this wonderful time. आज इस सुंदर से वक्त के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Father, we are praying for the wonderful, precious brothers and sisters. पिता, हम प्रार्थना करते हैं अद्भुत आपके बेटे और बेटियों के लिए। Thank you, Lord, you revealed your word to us. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि अपने वचन को आपने हमें प्रकट किया। Thank you for your salvation that is leading us towards to walk in your image and likeness. धन्यवाद जो उद्धार आपने हमें दिया है, जिस उद्धार के कारण हम आपकी समानता में ढल रहे हैं। Thank you, Father, that we have already walking in the eternal life. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपकी सार्वकालिकता में पहले से जी रहे हैं। Father, I pray in the name of Jesus. यीशु मसीह, पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। I speak the baptism of the Holy Spirit upon each and everyone who is watching this. हर एक व्यक्ति जो मुझे देख रहा है उसके ऊपर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मैं घोषित करता As हूँ। how Jesus was filled with the Holy Spirit Just- and he broke every power of the temptation of the devil. जैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और हर एक परीक्षा से बाहर उभरे वो। Father, baptized all of us with the fire of the Holy Spirit. Hence we will break every power of the darkness and we will walk like Jesus, imagining the image and likeness of God. वैसे ही हम सभी लोगों को आप आपके पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दीजिए, पवित्र आत्मा से भरिए, ताकि हम आपकी समानता को दिखाएं, ताकि पाप के जखड़ से मुक्त होकर अपने जीवन को जीने पाए। Father, I speak that fire over their life in the name of Jesus. मैं इन सभी लोगों के ऊपर अग्नि को घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। Because the word says, last days I will pour out my spirit on all flesh. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंतिम दिनों में हर एक देह के ऊपर मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। Father, we thank you that you are pouring out your spirit on the resurrected church life right now in the name of Jesus. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि रिजरेक्टेड लाइफ कलीसिया पर आप अपनी आत्मा को उतार रहे हैं, उंडेल रहे हैं पूरी रूप से। Father, let the city of Pune, Maharashtra and India see the glory of God, that the kingdom of God be established in this nation through the power of the Holy Spirit in the name of Jesus. पिता परमेश्वर, पुणे शहर, महाराष्ट्र और भारत के ऊपर आपका पवित्र आत्मा होने पाए, ये अपने आपके तेज को देखने वाले लोग बनने पाए। प्रभु जी, आपका राज्य यहाँ पे स्थापित होने पाए मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम में। Father, thank you, Lord, that you going to do mighty things through our lives. प्रभु जी, धन्यवाद कि हमारे जीवनों के द्वारा अद्भुत कामों को आप करेंगे। Thank you, Lord, that we today in faith proclaim in the name of Jesus that we are born of God and we are no more born of first Adam. प्रभु धन्यवाद, हम यीशु मसीह के नाम में इस बात को कबूल करते हैं, अंगीकार करते हैं इस बात का कि हमारा नया जन्म हुआ है। हम परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, हम आदम के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए। Help us, Lord, that we will experience and walk in the born of God. प्रभु जी, हमारी मदद और सहायता करें ताकि वो जो रिश्ता आपके साथ हमारा है उस रिश्ते को हम और गहरा कर सके, उस रिश्ते को याद कर कर हर एक जीवन का दिन जी सके। We give you glory and honor. प्रभु परमेश्वर, हम आपको आदर और महिमा देते हैं। In the name of Jesus we pray. यीशु Amen. मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। So God bless you all परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करे। and please give us a testimony of what God has done in your life. परमेश्वर ने आपके जीवन में जो किया है उसकी गवाही आप हमें जरूर दे। Because when you testify, जब आप गवाहियों को देते हैं devil is embarrassed.
तब वो जो हमारा शत्रु है उसे शर्म आती है, and the kingdom of God is advancing. और परमेश्वर का जो राज्य है वो और अधिक बढ़ता है और अधिक शक्तिशाली होता है। So God bless you all once again and have a great week with Jesus. परमेश्वर आपको आशीषित करे। आने वाला सप्ताह आपके लिए अद्भुत हो यीशु And मसीह के don't नाम। forget, you are born of God. भूलिएगा नहीं कि आप परमेश्वर के द्वारा जन्मे हुए हैं, परमेश्वर की उत्पत्ति है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। वाह, बहुत ही अद्भुत रूप में भाई सतीश्वर ने हमारी जो है वचन में अगुवाई करी, और मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हम सभी को परमेश्वर के वचन में चलाया, उनके उपस्थिति में हमारी अगुवाई करी। इसके लिए ब्रदर सतीश्वर, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं। आमीन। सो कलीसिया, अब हम भेंट की ओर मुड़ने वाले हैं। आमीन। अपना जो भेंट है आप ऑनलाइन के माध्यम से, अपना आपका दशमांश जो है आप ऑनलाइन के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। डिटेल्स आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ ही देर में दिखाई जाएंगी, ठीक है। परंतु वो भेंट का समय शुरू होने के पहले आने वाली भेंट के लिए हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके लोगों के लिए जो आपके भवन में, आपके राज्य में बो रहे हैं। पिता परमेश्वर, उस भेंट को मैं आपके हाथों में देता हूँ। हर एक पैसा जो है केवल और केवल आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस व्यक्ति के लिए जो अपने दशमांश को बो रहे हैं। पिता, वो आपकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने दशमांश को बो रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जैसे उन्होंने अपना पहलौटा आपके भवन में बोया है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप उन्हें आशीषित करिएगा आर्थिक रूप में, आत्मिक रूप में, हर रीति में पिता, और आप सारे चीज़ों का नियंत्रण उनके जीवन में ले लीजिएगा। आगे का सारा समय हम आपके हाथों में रहते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को करते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल करिए। सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमेन, 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 आमेन। डिटेल्स आपके स्क्रीन के ऊपर दी जाएंगी कलीसिया। सो क्यों ना हम भेंट के समय की ओर जाएं। वाह, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन मीडिया टीम। और हम क्यों ना सूचनाओं की ओर जाए। सूचनाएं कुछ खास नहीं है, सप्ताह भर की एक्टिविटीज़ जो है आपको ग्रुप के ऊपर इन्फॉर्म करे जाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर आप यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हो, पहली बार अगर आप सभा को देख रहे हो, तो कृपया करके हमारे साथ जुड़िएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आप हर बार जो है हमसे जुड़ सके। डिस्क्रिप्शन में जो है आपको सारे के सारे हमारे डिटेल्स दी गई है, लिंक्स दी गई है, जिसके द्वारा क्लिक करते ही आप हमारे साथ उन माध्यमों पर जुड़े रह सकते हो। आमीन। सो थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे साथ जुड़े। और अगर आप हमारे बाकी के एक्टिविटीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हो। अगर आप हमारे ऑनलाइन चर्च का भाग बनना चाहते हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हो। सारे डिटेल्स आपके इस यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आमीन। तो क्यों ना हम अनुग्रह को बांटें। लेट्स शेयर द ग्रेस। May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. 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 परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आने वाला सप्ताह आपके लिए परमेश्वर के अभिषेक से परिपूर्ण रहे। आप सभी को जय मसीह की।